Hello everyone, welcome to today's class. In the last class, we had learned about the preparation of simple cash book, single column. Now in today's class, we are going to learn about two column or double column cash book. Now this is the format of the double column cash book. फॉर्मेट के साथ साथ ही हम सीखते जाएंगे ये इस कैश बुक में हम एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कहाँ रिकॉर्ड होती है. नाउ जस्ट लाइक योर सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक also has got two sides, debit side and credit side. In debit side we are going to record all the receipts and on payment sides we are going to record all the payment. यानी कि आपकी cash, or you can see there is one more column here in the cash book, bank column. Debit side पर we have got 5 columns. First column date, जिस date को हमारा cash की हमने या बैंक के थ्रू पेमेंट करी है या पेमेंट रिसीव करी है, we are going to record the date. Then particulars. Then next column is LF. LF is ledger folio. लेजर फोलियो. बेटे इस कॉलम में हम रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट जिस पेज नंबर पे ओपन अप हुए हैं उस पेज नंबर को लिखते हैं. देन नेक्स्ट कॉलम इज कैश कॉलम एंड नेक्स्ट कॉलम इज बैंक कॉलम. द सिमिलर 5 columns are there on the credit side: date, particulars, LF, cash and bank. Now how this double column cash book is different from single column cash book. All the rules are same. That is, when cash is received, we are going to record it on the debit side. When cash is paid, we are going to record it on the payment side. लेकिन बेटा इस cash book में एक और column खुल गया है, that is bank. Now, when the payments are received through check, again I am repeating myself, when the payments are received through check, then it is going to be recorded. Since the payments are received through check, it is going to be recorded on the debit side of the cash book and we are going to record that figure over here. But when the payments are made by check, fine, when the payments are made by check, fine, we recorded on the credit side and bank column. Fine, we are going to record this amount in the bank column. Now let's say that salary is being paid through check. Fine, electricity bill is being paid through check. Now it's an expense which is being paid through check. तो हम यहाँ लिखेंगे by salaries और जो भी amount होगी वो bank column में record होगी. Fine. So if the payments are received by check, we are going to record it on the debit side of the bank column, in the bank column of the cash book. And if the payments are made by check, we are going to record it on the credit side in the bank column of the cash book. Now let's proceed further. Now beta, it may happen that we are carrying forward some cash balance or bank balance from the previous year or from the previous month. So let's say the first entry is that we have got the balance of cash on 1st April 2020. So we'll write to balance brought down, and this balance we are taking forward from the previous financial year and this amount is 10,000. और ऐसा भी हो सकता है बेटा कि बैंक का भी हम सेम बैलेंस, बैंक बैलेंस, let's say we are having
5,000 we can carry forward. We are carrying forward this 5,000 bank balance from the previous year. So the first transaction on the receipt side of the cash book will be two balance brought down. कैश हम पिछले साल से लेके आए हैं 10,000 और बैंक बैलेंस लेकर आए हैं 5,000. So we are going to record them both these figures on the debit side of the cash book. Particular column में two balance brought down. अब ऐसा भी हो सकता है बेटा कि हमारे बैंक में बैलेंस पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव हो, यानी कि हमने अमाउंट ओवर विड्रॉ कर रखी हो. So your bank balance may have overdraft balance. Fine. Overdraft का मतलब क्या होता है? Bank overdraft. Overdraft का मतलब होता है बेटा that we have overdrawn. Overdrawn means कि आपके let's say बैंक में आपके पास बैंक बैलेंस था let's say 50,000 का and you have issued a check. Issued a check. Check issue करना मतलब पेमेंट करना चेक के थ्रू. We have issued a check of let's say 60,000 to one of our creditor. Fine. So balance तो 50,000 का था, चेक हमने 60,000 का इशू कर दिया. So in our current account which is open for business purpose only, बैंक gives the bank overdraft facility. बैंक क्या करता है? ये चेक को क्लियर कर देता है और जो हमारी 10,000 नेगेटिव बैलेंस हो जाता है that becomes a liability of the customer to be paid in future. Fine. At a later date, maybe in 10 days or 15 days. Fine. So this is the bank overdraft. Bank overdraft means negative balance. Negative balance means that we are having balance by balance brought down. We are taking it debit balance हमारा आ गया by balance brought down, and this balance brought down, let's say 10,000 is shown on the credit side in the bank column of the cash book. If it's a bank overdraft, हमारा ये हमारा opening balance था बैंक का. Opening balance of bank, it's an overdraft. Overdraft अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. मीन्स हमारे पास बैंक बैलेंस 50,000 का था, हमने अपने क्रेडिटर्स को चेक इशू पेमेंट के लिए 60,000 का कर दिया, यानी कि बैंक से हमने 10,000 ज्यादा विड्रॉ कर लिए. बैंक क्या करेगा? ये चेक को क्लियर कर देगा, क्योंकि करंट अकाउंट में बैंक अपने कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है. ओवरड्राफ्ट मतलब आप ओवरड्रॉ कर सकते हो, जितना आपके पास बैलेंस है एक सर्टेन लिमिट होती है, आप उस लिमिट तक ज्यादा पेमेंट कर सकते हो देन द अमाउंट व्हिच यू आर मेंटेनिंग विद द बैंक. If such is the case, then we are going to have a credit balance of the bank. Then we are going to write by balance brought down 10,000. On students' demand, I am again explaining this concept. देखिए बेटा, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ओवरड्रॉन. अब ये फैसिलिटी बैंक अपने कस्टमर को देता है जब वो करंट अकाउंट बैंक के साथ ओपन अप करते हैं. अब इस एग्जांपल में क्या है? लेट्स से बिजनेस का बैंक बैलेंस 50,000 है और बिजनेस ने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए एक चेक इशू किया है 60,000 का. अब बैंक क्या करेगा? इस 60,000 के चेक को क्लियर कर देगा, यानी कि 60,000 की पेमेंट बिजनेस के क्रेडिटर को कर देगा. इससे क्या होगा कि जो बैंक बैलेंस है 50,000 ये तो कस्टमर का नील हो जाएगा और एक्सेस जो 10,000 है वो बैंक अपने पास से दे देगा और फ्यूचर में बिजनेस को कहेगा कि आप ये 10,000 रुपीज वापस कर दीजिए. तो इस बैलेंस को हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी, अगर ये पिछले साल हुआ है तो दिस बैंक ओवरड्राफ्ट इज गोइंग टू बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द बैंक इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो उस केस में बेटा हम इस ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कैश बुक में क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. अदरवाइज अगर ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं होता
लेट्स से ऑपोजिट देख लेते हैं. अगर issued a check, let's say हमारे पास बैंक बैलेंस था 50,000 का and issued a check of let's say rupees 45,000. फाइन, तो मेरे पास तो यहाँ पे 5,000 का बैलेंस होता. फाइन, मेरे पास यहाँ पे 5,000 का बैलेंस होता. And now this is a positive balance. Now this positive balance is going to be shown on the debit side of cash book in the bank column here. Fine. Overdraft था, negative balance था, so that balance we have shown. If overdraft balance is given in the question, then we are going to show that overdraft balance on the credit side of bank column in the cash book. I hope now this point is very much clear to all of you. Now let's proceed towards the next concept. Now in double column cash book, we have got a concept of contra entries. Contra entries. अब बेटा ये theory में भी question कई बार आ जाता है that what are contra entries? Now contra entries are the entries which affect both cash and bank. These are the entries which affect both cash and bank balances simultaneously in one transaction only. Fine. अब कैसे? Let's take an example. Simultaneously in one transaction only. Let's take an example. First entry is cash deposited in bank. Cash deposited in bank. Let's say the amount is rupees 2,000. Fine. Cash deposited in bank. The amount is 2,000. अब बेटा जब कैश डिपॉजिट होगा बैंक में तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? लेट्स फर्स्ट रिकॉर्ड दी जर्नल एंट्री. इफ कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक इंक्रीज हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा. एसेट जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है. अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं बेटा तो मेरी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. And the amount recorded will be 2,000. Fine. Now let's post this entry. अगर हम इस एंट्री को पोस्ट करें बेटा तो हम क्या कह रहे हैं कि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक में अमाउंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर बैंक कॉलम में डेबिट साइड पर वील राइट टू कैश, है ना. बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है ना, बैंक में अगर अमाउंट डिपॉजिट हो रही है तो बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड पर अमाउंट रिसीव हो रही है तो वील राइट टू कैश बैंक कॉलम में 2,000. फाइन. एंड कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर कैश इसमें क्रेडिट हो रहा है तो हम कैश कॉलम में 2,000 ऑन क्रेडिट साइड वील रिकॉर्ड 2,000 एंड वील राइट हियर बाय बैंक अकाउंट. फाइन. क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में? बैंक में अमाउंट 2,000 डिपॉजिट हुई है तो हमने रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम में 2,000 रिकॉर्ड कर लिया टू कैश और कैश बिजनेस से आपका चला गया, है ना. कैश जो है बिजनेस का रिड्यूस हो गया. सो वी हैव रिकॉर्डेड दिस अमाउंट 2,000 इन द कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बाय बैंक अकाउंट. And if such is the transaction, we are going to write a small c in the bracket in LF column in front of the amount. And this shows that this is a contra entry. And you can see that in one single entry, both cash and bank amount is being affected. Here both cash column and your bank column is changed. Fine. And
there is no need, one thing more, there is no need of posting this entry now in any of the ledger account, क्योंकि इस एंट्री का डुअल एस्पेक्ट कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड हो गया. कैश अकाउंट मेरा यहाँ पर कैश कॉलम, कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो गया. Now the second contra entry is, let's say cash withdrawn from bank, हमने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. ऑफिस में यानी कि बिजनेस में यूज करने के लिए अगर मैंने कैश विड्रॉ किया है, लेट्स से आई हैव विड्रॉन 3000 रुपीज फ्रॉम बैंक फाइन फॉर ऑफिस यूज. लेट्स पास द जर्नल एंट्री फर्स्ट. कैश विड्रॉ हुआ है, बैंक से विड्रॉ हुआ है, यानी कि बैंक अमाउंट हमारी बैंक बैलेंस कम हो गया, और ऑफिस यूज के लिए हमने कैश को विड्रॉ किया है, यानी कि कैश कॉलम मेरा इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि एंट्री विल बी, इफ आई वांट टू पास द जर्नल एंट्री फॉर द सेम, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड. कैश मेरा इंक्रीज हो गया, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट डिक्रीज हो गया. ऐसे जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है. सो दिस इज 3000. ये एंट्री हमने बना ली, ठीक है. अब अगर हम कैश बुक का भी रूल देखें, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि कैश कॉलम में डेबिट साइड पर हमारा अमाउंट रिसीव हो रहा है बैंक से. सो 3000 हमारे अमाउंट रिसीव हो गया, एंड पर्टिकुलर कॉलम में वी राइट बाय बैंक अकाउंट. Fine, by bank account 3000 received in the cash column. आया कहाँ से है? बैंक से आया है, तो बैंक डिक्रीज हो जाएगा. बैंक डिक्रीज हो गया, यानी कि 3000 will be recorded on the payment side, and we'll write here by cash account. Fine. So टू बैंक अकाउंट कैश कॉलम में 3000, बाय कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 3000, and again in front of these two entries we'll write small c in LF column. That means it's a contra entry. Fine. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ये वाली एंट्री बेटा. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक अमाउंट, बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो गया, तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस on the payment side, credit side, bank column 3000 by cash. और ये अमाउंट आई कहाँ पे? कैश बिजनेस में है ना. बिजनेस में कैश के अंदर इंक्रीज हो गया, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस कैश फॉर ऑफिस यूज. तो कैश कॉलम में टू बैंक अकाउंट, on the debit side we are going to record this amount 3000. Fine. So these are two contra entries. Fine. जब मैंने कैश डिपॉजिट किया था बैंक में, फाइन, सो बैंक में 2000 इंक्रीज हुए थे और बिजनेस के कैश में 2000 डिक्रीज हुए थे. और जब मैंने कैश को विड्रॉ किया बैंक से फॉर ऑफिस यूज, तो बिजनेस में 3000 कैश इंक्रीज हो गया और बैंक में 3000 बैलेंस ऑफ कैश हैज बीन डिक्रीज्ड. So these two are contra entries. I hope that these contra entries are clear to all of you. Now let's proceed further. But on 15th of April 2020, there is one transaction. It says received a check from Mohan rupees 5000. और आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ इस चेक के बारे में. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. ट्रांजैक्शन हुई है 15 अप्रैल 2020 को. He received a check from Mohan. Obviously मोहन हमारा डेटर ही होगा. हमने अगर चेक रिसीव किया है तो, पेमेंट रिसीव की है तो डेटर से रिसीव करते हैं. Received a check from Mohan rupees 5000. अब हमने ये चेक रिसीव कर लिया और आगे की ट्रांजैक्शंस में कुछ नहीं दिया हुआ इस चेक के बारे में, तो हम ये मान के चलेंगे बेटा कि ये चेक जिस दिन रिसीव हुआ उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन 15th of April 2020,
एंड वील राइट टू मोहन, मोहन से हमने चेक रिसीव किया था, तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड के बैंक कॉलम में वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड 5000 इन दी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन दी डेबिट साइड टू मोहन। लेकिन बेटा अगर इस ट्रांजैक्शन में यहां पे दिया होता है आगे 17 अप्रैल 2020 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन या चेक रिसीव्ड ऑन 15 अप्रैल 2020 deposited into bank, deposited into bank। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो चेक आपने 15 अप्रैल को रिसीव किया था मोहन से, वो आपने 17 अप्रैल 2020 को बैंक में डिपॉजिट कराया है, ठीक है। तो 15 अप्रैल को ये एंट्री नहीं आएगी। अगर ऐसा है, आपके क्वेश्चन में आगे ट्रांजैक्शन दी हुई है कि आपने पर्टिकुलर चेक किसी डेट को रिसीव किया और क्वेश्चन में आगे आपको एंट्री दे रखी है कि अ चेक रिसीव्ड ऑन 15th of April और अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 17th of April, देन इन दैट केस 15th अप्रैल की एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। 15th अप्रैल की एंट्री के लिए फिर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इन जर्नल प्रॉपर, ठीक है। हम वर्किंग नोट्स में कैश बुक में नीचे, कैश बुक जहां आपकी कंप्लीट होगी ना, वहां पर हम नीचे वर्किंग नोट्स दिखाएंगे और इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। डेट इज 15 अप्रैल 2020। अब चेक आपने रिसीव किया है, फाइन, लेकिन बैंक में डिपॉजिट आप 17th को करा रहे हो, तो आप एंट्री पास करोगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि चेक आपके हाथ में आ गया, आपके हाथ में ये दिस विल वर्क एज एन एसेट, ये आपके हाथ में आ गया टू मोहन, मोहन आपका डेटर था और वो डिक्रीज हो गया, रीजन क्योंकि उसने पेमेंट चेक में कर दी। सो दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन योर जर्नल, जर्नल प्रॉपर इन दी वर्किंग नोट बिलो द कैश बुक। और जब 17th को आपने यही वाला चेक इन हैंड बैंक में डिपॉजिट कराया, सो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन दी कैश बुक 17th April 2020, we'll write to check in hand, to check in hand account, and 5000 will be recorded in the bank column. On students demand, again I am repeating this transaction. देखो बेटा 15th April 2020 को we have received a check from मोहन 5000 का, और आगे हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे 17th अप्रैल को ट्रांजैक्शन है दैट चेक रिसीव्ड ऑन 15th, ये वाला डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि 15th को ये चेक डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में। सो ऑन 15th we are going to pass a journal entry in the working note, check in hand account debited to मोहन, कि मोहन को तो हम क्रेडिट करेंगे, we have received the amount from मोहन, so मोहन account should be credited on 15th only, so entry will be check in hand account debited to मोहन 5000। और जब हमने 17th को ये जो चेक रिसीव किया था, देखो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट ओपन ऑफ हो गया, और जब हमने 17th को ये चेक रिसीव जो किया था वो बैंक में डिपॉजिट कराया, सो ऑन 17th we'll record this transaction on the receipt side, bank column 5000 rupees particular में to check in hand, फाइन। अब बेटा ये अगर चेक डिपॉजिट ही ना हुआ होता, ठीक है, ये चेक अगर डिपॉजिट ही ना हुआ होता, 15 को हमने चेक रिसीव किया है और सेम चेक को जो मैंने मोहन से रिसीव किया है उसको मैं एंडोर्स कर देती हूँ, एंडोर्स कर देती हूँ टू वन ऑफ माय क्रेडिटर, यानी कि मुझे अपने क्रेडिटर को एक पेमेंट देनी थी 5000 की, फाइन।
मैंने 18th अप्रैल 2020 को फाइन endorsed the check received on 15th April 2020 to let's say राम क्रेडिटर था। हमने क्या किया, इस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया और इसी चेक को राम को एंडोर्स कर दिया। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये 17th की एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये चेक तो मैंने बैंक में डाला ही नहीं। फाइन, ये चेक बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये बैंक में नहीं गया और ये चेक राम को हमने दे दिया। सो जब चेक इन हैंड आया था तो डेबिट हुआ था। फाइन, so the entry recorded in our books of account will be again in the working note journal में entry will be Ram is the receiver of check, so debit the receiver, so entry will be Ram account debited to check in hand. Fine, Ram account debited to check in hand. Let me write the entry over here. If such is the case कि जो चेक हमारे पास आया था वो हमने आगे एंडोर्स कर दिया, so I'll write the entry in the working note. Fine, we'll record this entry in the working note. हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। We'll write Ram debited to check in hand and this amount is, the check was received of 5,000, हमने as it is उसको राम को endorse कर दिया। Rule is debit the receiver, Ram is the receiver of check from the business, so 5,000 Ram account is debited, check in hand account debit हुआ था, अब वो चला गया check in hand आपके हाथ से, so this account is credited, so entry will be Ram account debited to check in hand. I hope that all the transactions we have discussed today is clear to all of you. Now the last transaction for the day, we say that on 30th of April 2020, check received from Mohan, हमने मोहन से चेक रिसीव किया था ना, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन was dishonored. Fine, and the amount of this check is, let's say 7,000, though it was 5,000, okay, let's keep it 5,000, it is 5,000, हमने endorse नहीं किया, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया था and this check is dishonored. डिसऑनर हो गया यानी कि हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं आया और हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट इंक्रीज कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, अब मोहन विल अगेन बिकम माय डेटर। इफ द चेक इज डिसऑनर्ड, मोहन विल अगेन बिकम माय डेटर, सो माय एंट्री विल बी मोहन अकाउंट, विल नॉट राइट अकाउंट इन वर्किंग नोट, पहले मैं वर्किंग नोट में एंट्री पास कर दूं, मोहन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक जो हमने इंक्रीज किया था उसको डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं आया। फाइन, सो एंट्री इज मोहन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड इफ आई पोस्ट दिस एंट्री इन दी कैश बुक, तो आप देखो क्या हो रहा है, बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, तो आई विल रिकॉर्ड दिस एंट्री, आई विल नॉट राइट इट इन दी जर्नल, ये तो सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री पास करके दिखा दी, वरना ये एंट्री स्ट्रेट अवे कैश बुक में जाएगी। कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगी, बिकॉज मोहन विल अगेन बिकम माय डेटर, एंट्री विल बी बाय मोहन ऑन 30th of April 2020 बाय मोहन एंड इन बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे we'll record 5,000. So this is the treatment when the check is dishonored.
then this entry is recorded on the payment side of the cash book, bank column में, by the name of the debtor 5,000 in the bank column. I hope that all the entries regarding the cash book, double column cash book, how we are going to record it in the cash book is clear to all of you. एक एंट्री और बेटा आप देखोगे ट्रांजैक्शंस ना डिस्काउंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में मिलेगी, तो डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो, वो डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड किसी भी कॉलम में नहीं होता। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड को हम वर्किंग नोट में ही जर्नल में दिखाते हैं। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, एंट्री बन जाती है हमारी डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ हम डेटर को करते हैं, और डिस्काउंट रिसीव करते हैं हम क्रेडिटर से, तो एंट्री बन जाती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। वो सारी एंट्री हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं। फाइन, वो कोई भी एंट्री आपकी डबल कॉलम कैश बुक में नहीं आती। आप देखोगे अगर आपने कोई पेमेंट रिसीव की है और डेटर ने आपको डेटर को आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है, तो आपने जो पेमेंट रिसीव की है वो तो यहाँ रिसिप्ट साइड पे आ जाएगी। कैश में रिसीव करी है तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगी, चेक में रिसीव की और चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन डेटर को अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो डिस्काउंट अलाउड विल बी शोन इन दी वर्किंग नोट, डिस्काउंट अलाउड will be shown in the working note below your cash book, discount allowed account debited to debtor account. फाइन, और अगर आपने कोई पेमेंट करी है क्रेडिटर को, फाइन, अगर आपने पेमेंट करी है क्रेडिटर को और क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट दिया है, बिजनेस को डिस्काउंट दिया है, सो दिस इज गोइंग टू बी डिस्काउंट रिसीव फॉर द बिजनेस, सो दैट अगेन आपने जो पेमेंट करी है वो तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे। कैश में करी है तो कैश कॉलम में, चेक के थ्रू करी है तो बैंक कॉलम में, लेकिन डिस्काउंट रिसीव जो आप करोगे दैट विल बी अगेन रिकॉर्डेड इन आवर वर्किंग नोट बिलो द कैश बुक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू योर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, discount received account. Fine. And finally, this cash book is also balanced in the same manner as we balance the single column cash book. अगर आपकी receipt side ज्यादा है payment side से, तो आपका balance, see, if your receipt side is greater than the payment side, it is greater than the payment side, तो आपका balance यहाँ पर आ जाएगा by balance close down. Let me put a star over here. Fine, ये balance आपका यहाँ पे आ जाएगा. लेकिन अगर opposite हुआ, that is your payments are, let's put this star, your payments are greater than receipt. Payments are greater than receipt. That means we are having an overdraft balance. Fine, and then you are going to record two balance close down over here. Fine, तो हमारा close down debit side पे आ जाएगा, which is going to be carry forward to the next financial year. I hope that the adjustments related to your double column cash book is clear to all of you. In the next session, we'll be learning how to do the practical problems by applying all these rules which we have learned today. In the next class, we'll solve the practical problem on double column cash book. That's all for today from my side. Thank you very much.